Hello students, today we shall talk about the process of the presidential election in India. The process of electing the president of India is quite complex. So you just listen and just watch this presentation carefully in order to properly understand the process of the election of the president of India. Election of the Indian president, we all know that the president in India is the head of the state. He is the nominal executive. There are various powers and functions of the president of India. And president of India is not elected directly by the citizen of India. You should remember it that the president of India is not directly elected by the people. Article 52 of the Indian Constitution deals with president. It states that there shall be a president of India. Article 52, Article 53, Article 54 talks about who elect the president of India. Article 55 deals with the mode of electing the president of India. So there are some articles in the Indian Constitution that deals with the president and its various aspects. Article 54 of the Indian Constitution says that who elect the President of India. Clearly states that the President shall be elected by the members of an electoral college consisting of the elected members of both houses of parliament and the elected members of the legislative assemblies of the state. That means कि all the elected members, remember it, not the nominated, elected members of the legislative assemblies of the state as well as the elected members of both houses of parliament, they together elect the president of India. Remember, nominated members are not involved in the process of electing the president of India. We all know that our parliament is bicameral in nature. There are two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and the member of both these two houses are called as MP or the member of parliament. This is the old figure, 29 states and 7 union territories. At present in our country, there are 28 states and 8 union territories. In states, we find the member of legislative assembly who are known as MLA. In the legislative assemblies of two union territories, Delhi and Pondicherry, which is now known as Puducherry, we find the members of legislative assemblies are also there. So in state, we find in the legislative assemblies of state and union territory, there are MLAs, and in the parliament, we find the MPs. So MP means member of parliament, MLA means member of legislative assembly. Now, let's begin with the election of the Indian president. See this chart. Citizen of India elects the member of parliament as well as the member of legislative assembly. Okay, citizen of India elect the member of parliament and the member of legislative assembly, and in turn the member of parliament and the member of legislative assembly, they elect the president of India. So in one way we can say the president of India is elected by all the MLAs and MPs, and MLAs and MPs are elected by the people. So in one way we can say that the president of India is indirectly elected by the people of India. Okay, by the citizens. Now see, in order to elect the president of India, we have to find out the value of the vote of all the MPs and MLA. Okay, value of the vote, we have to find out the value of the vote of all MP and MLA. Let's start with finding out the value of the vote of MLA. Okay, value of the vote of MLA. The formula is the value of the vote of one MLA is equal to total population of a state. Total population of that state as per the 1971 census. 1971 census के बेसिस पे कितनी आबादी थी स्टेट की, वो आपको पता करना है. ओके, तो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MLA is equal to total population of a state divided by total MLA of a state
divided by 1000. That means total population of a state divided by total MLA of a state into 1000. Okay, this is the formula. This is the formula. Now see, members of parliament and member of legislative assembly, they are having the certain number of votes. This is the 1971 census, through which you can find out the population of all the states of India in 1971. So see, value of the vote of one MLA, as we have discussed, total population of a state divided by total MLAs of a state into 1000. Okay, up now let's take the example of Madhya Pradesh. Okay, now through the example of Madhya Pradesh we will find out the value of the vote of one MLA. The value of the vote of one MLA in Madhya Pradesh is equal to total population of state in 1971. कितना था मध्य प्रदेश में 1971 में पॉपुलेशन? सी 300,171,180. That was the population of Madhya Pradesh in 1971. And how many total MLAs was there in Madhya Pradesh? Is there in Madhya Pradesh? 230. Okay, so now you could find out the value. Okay, 300,171,180 by 230 into 1000. If you find out the value of this, okay, 300,171,180 by 230 into 1000, तो you will get 130.50, यानी कि approximately ले लो 130. तो value of the vote of one MLA in Madhya Pradesh is 130. We have find out, है ना, कि मध्य प्रदेश के एक MLA का वैल्यू, वोट का वैल्यू कितना पड़ा? 130. टोटल MLA कितने हैं मध्य प्रदेश में? 230. तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 130 into 230 is equal to 29,900. Okay, in this way you find the total. We have find out the value of the vote of all MLAs in Madhya Pradesh. ठीक है, through this formula. So similarly we can find out the value of the vote of all the MLAs of state and union territories. हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ वन MLA मध्य प्रदेश में कितना निकला? 130. तो टोटल वैल्यू मध्य प्रदेश से कितना हो गया? 130 इंटू 230. ओके, 230 आप यहाँ देख सकते हो, 230 नंबर ऑफ MLA है मध्य प्रदेश के. तो 130 इंटू 230 कितना हो गया? 29,900. ओके, तो ये आपका निकल गया 29,900 मध्य प्रदेश का टोटल MLA का वैल्यू. उसी तरह हर स्टेट का वैल्यू निकाल लो. ठीक है, हर स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का वैल्यू अभी तो हम निकाल नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, लेंदी हो जाएगा. लेकिन 2012 में जब निकाला गया था सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के MLA का वोट का वैल्यू, तो वो निकला था 5,49,474. ये निकला था. इसको आप देख लीजिए. टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल MLA इन द कंट्री फॉर 2012 वाज 5,49,474. ये टोटल वैल्यू निकल गया MLA का ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ओके, अब इसको आप साइड में रखिए, टोटल वैल्यू ऑफ MLA को. अब हमें निकालना है MP का वोट, वैल्यू ऑफ वोट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ वन MP, वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? सी टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MLAs इन द कंट्री, जितना टोटल वैल्यू निकला सारे MLA का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ MPs, टोटल नंबर ऑफ MPs, इलेक्टेड MPs. ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट कितना निकला आप देख सकते हैं, 5,49,474. और टोटल मेंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स MPs कितने हैं? 543 है लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स और 233 है राज्यसभा में. तो टोटल कितने हो गए? 776. तो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट हुआ 5,49,474 डिवाइडेड बाय 776. कितना हो गया? 708. यानी कि एक MP का वोट का वैल्यू, अगर एक MP का वोट का वैल्यू कितना हो गया? 708. टोटल MP कितने थे? 776 थे. तो टोटल वैल्यू कितना निकल गया? 708 इंटू 776. 708 इंटू 776 इज इक्वल टू 5,49,408. आप यहां देख सकते हो कि MP के वोट का वैल्यू, एक MP के वोट का वैल्यू है 708. मगर अगर एक MP वोट देता है किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को तो उसको 708 पॉइंट मिल जाएंगे. और MLA का वोट का वैल्यू देख रहे हो 130 है. यानी कि ये शो करता है कि MP का पावर, MP का इन्फ्लुएंस, MP का इंपॉर्टेंस MLA से कहीं ज़्यादा है. तो इस तरह से हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ वोट निकल गया MP का कितना? 5,49,408. ओके,
तो अब यहाँ नीचे देखिए, आप लाइन के नीचे देखिए, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल एमएलए कितना है, 5,49,474, और टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल एमपी कितना निकला, 5,49,408। तो टोटल वोट, टोटल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू कितना हो गया, दोनों को आप प्लस कर दो, 10,98,882. That is the gross value of all the MLA and MPs of our country. 10,98,882. अब इतने वैल्यू का अगर 50% प्लस 1 वोट अगर किसी कैंडिडेट को आ जाता है, जो इलेक्शन में, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो खड़े हुए, मान लीजिए 2% खड़े हुए हैं, और वैल्यू है कितना टोटल, 10,98,882. तो 2% अगर इलेक्शन में खड़े हैं और दोनों में से अगर 50% प्लस 1 किसी एक पर्सन को आ गया, ए को या बी को, तो जिसको भी आ गया 50% प्लस 1 उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। अब यहां पे देखो, मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, देखो मान लीजिए 4 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ए, बी, सी और डी। तो वोट कैसे देते हैं एमएलए और एमपी, वो प्रेफरेंस बताते हैं, है ना, कि मेरा पहला प्रेफरेंस है सी को। 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो मैं सी को पहला प्रेफरेंस देता हूँ, ए को दूसरा प्रेफरेंस दूंगा, तीसरा प्रेफरेंस डी को दूंगा, और चौथा प्रेफरेंस बी को दूंगा। तो आपको प्रेफरेंस बताना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी टू गिव प्रेफरेंस, बट it is advisable to give preference to all. Number 1, I want C to be the president. If not C, then A. If not A, then D. If not D, then B. इस तरह से आपको प्रेफरेंस बताना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, आप सपोज कर लीजिए कि 15,000 टोटल वोट हुए हैं, कितना भी हम लोग निकाले थे, 10 लाख। तो 10 लाख को कैलकुलेट करना मुश्किल है। मान लीजिए टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल एमएलए और एमपी का कितना निकला, मान लीजिए 15,000 निकला। 10 लाख को छोड़ दीजिए, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखिए, मैं जनरली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देता हूँ, लेकिन अभी मैं हिंदी में आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आउट एंड आउट इंग्लिश में बोलूँगा तो हो सकता है कि ये आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं हिंदी में भी आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ लें। तो मान लीजिए टोटल वोट ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए और एमपी कितना निकला, 15,000, ठीक है। अब 15,000 में कितना वोट आपको चाहिए, 50% प्लस 1, दैट इज 15,000 बाई 2 प्लस 1, 7,501। अगर 7,501 वोट आ गया आपको, तो आप प्रेसिडेंट बन जाओगे। ए को आया 5,250, बी को आया 4,800, सी को आया 2,700, डी को आया 2,250, किसी को 7,501 नहीं आया, तो कोई प्रेसिडेंट के बनने के लायक नहीं है, क्योंकि ये मेजॉरिटी 50% प्लस किसी को नहीं आया। तब क्या होगा, देखिए, तब जो सबसे कम जिसको आया ना उसको हटा दिया जाएगा, डी को हटा दिया गया। 2,250 आया था, डी को हटा दिया गया। अब बचे कौन, ए, जिसका इतना वोट है, बी का इतना वोट है, सी का इतना वोट है। अब डी को हटा दिया गया। हटाने के बाद भी तीनों का 7,501 नहीं आया, जो पहले था वही है। अब यहां पे जब डी को हटाया गया, तो डी को जिन लोगों ने पहला प्रेफरेंस माना था, उन लोगों का वोट देखा जाएगा कि डी को जिन लोगों ने 1 माना, ए, बी और सी को उन लोगों ने कितना प्रेफरेंस दिया, ठीक है। जिन लोगों ने डी को 1 माना, उन लोगों ने ए को 2 माना होगा, बी को 3 माना होगा, सी को 4 माना होगा। ये तो हो सकता है ना। तो डी को वोट देने वालों का देखा जाएगा कि उन लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसको दिया, ठीक है। तो सेकंड प्रेफरेंस यहां पे आप देख लीजिए, डी सेकंड प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिला है बी को, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस डी को जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस माना था, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिला बी को 1,050, उसके बाद सी को मिला 900, उसके बाद ए को मिला 300। तो सबसे ज्यादा सेकंड प्रेफरेंस मिला बी को 1,050, तो 1,050 पॉइंट जो है वो बी के साथ ऐड हो जाएगा। देख लीजिए 4,800 प्लस 1,050 ऐड हो गया। उसके बाद ए को सी को सबसे ज्यादा सेकंड प्रेफरेंस मिला 900, तो 900 पॉइंट सी में चला जाएगा। देख लीजिए 2,700 प्लस 900 कितना हो गया, 3,600। ए को कितने लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस माना, 300, तो ए के खाते में 300 जाएगा, तो कितना हो गया, 5,250 प्लस 300, ठीक है। तो कितना हो गया, ए का हो गया 5,550, बी का हो गया 5,850, सी का हो गया 3,600। अभी भी किसी को नहीं आया, देख रहे हो ना। तो वोट ट्रांसफर हो गया, डी का वोट जो है वो ट्रांसफर हो गया टू ए, बी एंड सी। दिस इज ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लेकिन वोट ट्रांसफर होने के बाद भी
किसी को नहीं आया मेजॉरिटी। कितना था मेजॉरिटी लाना है 50% प्लस 7501, किसी को नहीं आया। ठीक है, अब क्या होगा, फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए आप, अब सब ए बी सी, यहाँ पे आप देखिए सी को कितना 3600 सबसे कम आया। अब क्या किया गया, सी को हटा दिया गया। अब बचे कौन, ए और बी। ए का कितना है 5550 और बी का है कितना 5850। ठीक है, ये है। अब जब सी को हटा दिया गया तो अब ये देखा जाएगा कि सी को जिन लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिया था, है ना, सी को जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस माना था, ठीक है, उन लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है, सी को तो सेकंड प्रेफरेंस, यहां पे आप देख सकते हो सी को सेकंड प्रेफरेंस हुआ था। ठीक है, तो सी को सेकंड प्रेफरेंस मिला। ठीक है, तो ए और बी को अब देखा जाएगा कि ए और बी को थर्ड प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया। ठीक है, सी को तो आप देख सकते हो सी को सेकंड प्रेफरेंस मिला था। ठीक है, ए को सेकंड प्रेफरेंस 300 लोगों ने दिया, बी को सेकंड प्रेफरेंस 1050 लोगों ने दिया। अब ये देखा जाएगा कि थर्ड प्रेफरेंस ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। ठीक है, तो थर्ड प्रेफरेंस जो मिला सी को जिन लोगों ने 1 दिया, तो जिन लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस किसको माना, तो ए को थर्ड प्रेफरेंस मिला था 1700 और बी को थर्ड प्रेफरेंस मिला 1900। ठीक है, तो ए को थर्ड प्रेफरेंस मिला 1700, तो 1700 ए के खाते में चला गया 5250 प्लस। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे देखिए ए को 1700 ने दिया थर्ड प्रेफरेंस और बी को 1900 ने दिया थर्ड प्रेफरेंस। तो ए का जो 1700 है वो ए में ऐड हो गया, 5550 था पहले, अब हो गया 1700, 7250। ठीक है, और बी का जो वोट है ना, थर्ड प्रेफरेंस 1900, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बी को, 1900 बी के खाते में जाएगा, 5850 प्लस 1900 ये चला गया, ये कितना हो गया 7750। देख रहे हो ना, बी को आ गया 7750। तो 7750 लाना कितना था 7501। ओके, सो बी हैज गॉट 7750, तो बी हैज गॉट द मेजॉरिटी ऑफ वोट। So now B will be declared as the President of India. B will be declared because B has got the 50% plus 1. 50% plus 1 कितना था, मैंने अभी यहाँ देखा 7501 और इसको कितना आ गया 7750। तो इस तरह से B जो है ना वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। इस तरह से आप देख रहे हो ना कि प्रेफरेंस के बेसिस पे अगर किसी को मेजॉरिटी आ गई 50% प्लस 1 एक बार में ही तो ठीक है, और नहीं तो फिर एक को सबसे कम वाले को बाहर किया जाएगा, फिर उसके वोट को ट्रांसफर किया जाएगा उन लोगों में, ऐड किया जाएगा। उसके बाद भी नहीं आया तो फिर एक और को बाहर किया जाएगा जिसको कम आया, फिर उसके वोट को ट्रांसफर किया जाएगा, उसके सेकंड थर्ड प्रेफरेंस को ट्रांसफर किया जाएगा और उसमें बाकी बचे हुए दोनों में से किसी एक को मेजॉरिटी आ ही जाएगा। जनरली क्या होता है कि एक ही बार में किसी को एक ही बार में 50% प्लस 1 आ जाता है, वोट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार करने की जरूरत पड़ी थी जिसमें वीवी गिरी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू ट्रांसफरेंस ऑफ वोट। नहीं तो उसके बाद जब भी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ एक ही बार में एक पर्सन को 50% प्लस 1 डायरेक्ट आ जाता है, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर नहीं आया तो ट्रांसफर के जरिए वोट ऐड किया जाता है और जिसको फिर मेजॉरिटी आ जाती है दैट पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हियर वी फाइंड दैट बी has become the president of India because he has got the quota. So in this way we find that Article 55 states that President of India is elected by the method of proportional representation. Proportional representation मतलब कितना proportion है population का हर states में, उसके basis पे formula निकाला जाता है। तो President of India is elected by the method of proportional representation with single transferable vote system. Okay? Thank you.